بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہادی کی فوج نے شبوہ صوبے پر قبضہ کر لیا۔ سعودی اتحاد نے تمام محاذوں پر یمن کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن کا کیا اعلان۔ سعودی عرب میں ریکارڈ 5400 نئے کووڈ کیس۔ فاؤچی نے کہا اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے، ہر ایک کو چھو کر رہے گا۔ ڈوننگ اسٹریٹ پارٹی کے لیے برطانیہ میں تحقیقات۔ لیبر پارٹی لیڈر وزیر اعظم بورس جانسن سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ برطانیہ میں 1,20,000، جرمنی میں 80,000 نئے کووڈ کیس۔ آسٹریا میں بھی نیا ریکارڈ۔ سویڈن میں پابندیاں۔ انڈیا کے کورونا کیسز 2 لاکھ ہو گئے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں سے کہا ہاسپٹلز میں آکسیجن تیار رکھیں۔ ملک میں ہر 11واں شخص کووڈ پازیٹیو ہو رہا ہے۔ مودی جمعرات کو چیف منسٹرز کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ انڈیا چائنا فوجی عہدیداروں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے میٹنگ۔ عہدیداروں نے کہا بات چیت جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ نے دھرم سنسد کے سلسلے میں دی نوٹسیں، 10 دن کے اندر مانگے جواب۔ یو پی میں بی جے پی کی ایک اور وکٹ گری۔ موریہ کے بعد وزیر دارا سنگھ چوہان نے بھی دیا استعفیٰ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ یمن سے اہم خبر آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے یمن کے شبوہ صوبے میں دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ سعودی اتحاد نے یہ بھی کہا کہ اب وہ شبوہ کی کامیابی کے بعد تمام محاذوں پر یمن کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن کرے گا۔ سعودی عرب کی تائید رکھنے والی ہادی حکومت کی وفادار فوج لمبے عرصے سے اس لڑائی میں مصروف تھی اور کئی مہینوں میں پہلی مرتبہ وہ ماریب کے ساؤتھ کے علاقے میں داخل ہوئی ہے، جہاں حوثیوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اتحادی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ یمن کو آزاد کرانے کے آپریشن کا مقصد وہاں پر سلامتی اور خوشحالی پیدا کرنا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان جنرل ترکی المالکی نے شبوہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد یمن کو پاک کرنا ہے، حفاظت، سلامتی، خوشحالی اور ترقی کو بڑھاوا دینا ہے۔ مالکی نے صوبے کے گورنر اودھ بن الوزیر سے بات چیت کی اور ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یمن کے تمام علاقوں میں بہتری ہونی چاہیے اور یمن کے لوگ اس بہتری کے حقدار ہیں۔ یمن سے متعلق سعودی عرب کے سفیر محمد الجابر نے کہا کہ یمنی حوثیوں کی بغاوت کو ختم کر سکتے ہیں۔ سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا کہ یمن میں الگ الگ آپریشنز میں 350 سے زیادہ حوثی ہلاک ہوئے ہیں۔ تیل کی دولت سے مالا مال ماریب میں 120 سے زیادہ حوثی فائٹرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 14 فوجی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ یو اے ای کی مدد رکھنے والی ایک فوجی بریگیڈ نے بتایا کہ اس نے 10 دن کے آپریشن کے بعد شبوہ پر قبضہ مکمل کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے مقامی سورسز کے حوالے سے کہا کہ صوبے پر ہادی حکومت کی وفادار فوج کا قبضہ ہو گیا ہے۔ صوبے کے گورنر نے سعودی عرب اور یو اے ای کی مدد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ملک لمبے عرصے سے ہادی حکومت بحال کرنے کے لیے یمن میں آپریشن کر رہے ہیں اور لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس دوران ماریب میں زبردست لڑائی کی خبریں ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شبوہ صوبے پر ہادی حکومت کی وفادار فوج کا قبضہ ایک اہم واقعہ ہے۔ حوثیوں نے 2004 میں یمن کے دارالحکومت سنا اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کیا تھا۔ سعودی عرب نے 2015 سے یمن میں حملے شروع کیے۔ حالیہ ہفتوں میں لڑائی بہت تیز ہو گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے امن کوششیں شروع کی ہیں جن کا اب تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا ہے۔
यमन के हूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा है कि सऊदी इत्तेहाद ने एक फिल्म के फुटेजेस का इस्तेमाल करते हुए हथियारों के गोदाम के ताल्लुक से झूठे दावे किए हैं। हूसियों के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान खुद इस फुटेज के ताल्लुक से स्कैंडल का इकरार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी मिसाइल साइट्स का कोई वजूद नहीं है जिनके बारे में दावा किया गया है। इससे पहले सऊदी अहदेदारों के हवाले से कहा गया था कि उन्होंने हुदैदा में हथियार बनाने की साइट्स को बेनकाब किया है और फुटेजेस दिखाए गए हैं। 2009 की एक डॉक्यूमेंट्री से ये फुटेजेस हासिल किए गए हैं और ये डॉक्यूमेंट्री इराक में बनाई गई थी। हूसी अहदेदारों ने कहा कि सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाज़ों ने यमन के कई मकामात पर हवाई हमले किए हैं। अलमसीरा टेलीविजन चैनल ने मकामी सोर्सेस के हवाले से बताया कि सऊदी जहाज़ों ने शब्वा के कई मकामात पर 37 हवाई हमले किए। हलाकतों के बारे में हूसियों ने कुछ नहीं कहा। बास तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि यूएई इसराइल के टूरिस्टों को यमन के जजीरे सकोतरा पहुंचा रहा है और वो वहां पर छुट्टियां मना रहे हैं। इससे यमन के लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है। अमेरिका के बाद सेनेटर्स ने यमन के हूसियों पर शदीद तनकीद की है और ईरान को मिडल ईस्ट में बुराई की जड़ करार दिया है। अमेरिका के एक अहम सेनेटर लिंजी ग्राहम और दूसरों ने यह तनकीद की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हूसी ईरान के एजेंट्स के तौर पर खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब सीरिया जंग अमलन ख़त्म हो चुकी है, ईरान और सीरिया की हुकूमतों ने कहा है कि वो तिजारती और मौशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। ईरानी ट्रांसपोर्ट वज़ीर रुस्तम कासमी ने ये बात बताई। वो दमिश्क के दौरे पर हैं। उनके साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी ये दौरा कर रहा है। इसराइली मीडिया में कहा गया है कि एक यहूदी बस्ती के करीब एक फ़लस्तीनी ने अपनी गाड़ी से इसराइली फ़ौजी को टक्कर दे दी। इस वाक़े में फ़ौजी बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। इस फ़लस्तीनी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमालिया में कार बम धमाके में कई लोग हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ये धमाका मोगदिशु में किया गया है। अहदेदारों ने बताया कि कम से कम 8 लोग हलाक हुए हैं। सऊदी अरब ने सूडान में फौजी बगावत से पैदा सूरत हाल को हल करने की कोशिशों की तारीफ की है। सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें बहरान को हल करने के लिए बातचीत की कोशिशों पर खुशी का इजहार किया गया। कैबिनेट मीटिंग में यमन की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया में खबर गर्म है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के यूके चैप्टर के एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नासिर महमूद भट्ट ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया, जिसके बाद अंदाजे तेज हो गए हैं। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए थे, तब से वो वहीं पर हैं। उन्हें करप्शन के केस में सजा हुई थी। जर्मनी में कोरोना वायरस के 80,000 से ज्यादा नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए हैं। ये वबा शुरू होने के बाद से जर्मनी के सबसे ज्यादा डेली केसेस हैं। बल्गारिया में भी केसेस 7,062 हो गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यूरोप के अहदेदारों ने कहा है कि पूरे खित्ते में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। WHO ने वार्निंग दी है कि अगले कुछ हफ्तों में यूरोप की आधे से ज्यादा आबादी ओमिक्रॉन से मुतासर होगी। स्वीडन में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। रशिया में ओमिक्रॉन केस 700 हो गए हैं। ऑस्ट्रिया में कोविड-19 केसेस का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। पिछले 24 घंटों में 18,427 नए केस पाए गए हैं। हंगरी में डेली केसेस बढ़कर 7,883 हो गए हैं। किर्गिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस पाया गया। जापान के ओसाका में कोविड इन्फेक्शंस 3 गुना बढ़ गए हैं, जहां 1,700 नए केसेस पाए गए। साउथ अफ्रीका में कोविड केसेस 4,000 से ज्यादा हो गए हैं। इंडोनेशिया में मुफ्त बूस्टर शॉट्स देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और हर एक को छू कर रहेगा, लेकिन वैक्सीन लेने वाले लोग इससे निपटने में बेहतर हालत में होंगे। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब अमेरिका में एक दिन पहले रिकॉर्ड 13.5 लाख केसेस पाए गए। बरतानिया में बोरिस जॉनसन हुकूमत पर लॉकडाउन के दौरान पार्टी के लिए बहुत दबाव है। डोनिंग स्ट्रीट पर होने वाली इस पार्टी में बोरिस जॉनसन, उनकी बीवी और 30 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस सिलसिले में उनसे लेबर पार्टी लीडर केयर स्टार्मर पूछताछ करेंगे। इस सिलसिले में एक इंक्वायरी हो रही है। बरतानिया में मंगल को 1,20,081 नए कोविड केस पाए गए और 389 जाने गई।
सऊदी अरब में अब तक के सबसे ज्यादा कोविड केसेस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 5,362 नए केसेस पाए गए। इसके अलावा 2 मौतें भी हुई। सऊदी अरब में कोविड प्रोटोकॉल फिर से लागू कर दिया गया है। इंडिया की कोविड सूरत हाल की बात करते हैं। मुल्क में डेली कोविड केसेस तकरीबन 2 लाख हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,94,000 से ज़्यादा नए केसेस पाए गए हैं। पॉजिटिव रेट बढ़कर 11% से ज़्यादा हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 153 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। इंडिया के एक्टिव केसेस बढ़कर 9,55,000 हो गए हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि पॉजिटिव रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो फिक्र की बात है। खासतौर पर मुंबई, बेंगलोर अर्बन और कोलकाता जिलों के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया गया है। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1,94,720 नए कोविड केस पाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 442 जानें गई हैं। मौतों में भी इजाफा हुआ है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकजी इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को एक खत लिखते हुए कहा है कि वो फौरी तमाम हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुल्क की कोविड सूरत हाल का जायजा लेंगे। इंडिया के कोविड केस कुछ दिनों में देखते ही देखते काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 दिसंबर को औसतन 1% लोग मुतासिर हो रहे थे। अब ये रेट बढ़कर 11% से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि हर 100 लोग जो टेस्ट करा रहे हैं उनमें से 11 से ज़्यादा लोगों में वायरस पाया जा रहा है। पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो गए हैं। इंडिया के ओमाइक्रॉन केस बढ़कर 4,868 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा 1,281 केसेस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। राजस्थान में 645, दिल्ली में 546, कर्नाटक में 489 और केरला में 350 ओमाइक्रॉन केस पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार और दिल्ली में होने वाली धर्म संसदों में मुसलमानों के खिलाफ उकसाने वाली तकरीरों का नोट लेते हुए मरकजी हुकूमत और दूसरों को नोटिसें जारी की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना की क़यादत वाली बेंच ने जर्नलिस्ट कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की साबिक जज और सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश की दरख्वास्त पर यह नोटिस जारी की। इस दरख्वास्त में ख्वाहिश की गई है कि नफरत पर मबनी तकरीरों की SIT के जरिए आज़ाद, काबिल भरोसा और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराई जाए। बेंच ने, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल थे, दरख्वास्त गुजारों को इजाज़त दी कि वो मुस्तक़बिल में धर्म संसदों को रोकने के लिए मकामी अथॉरिटी से नुमाइंदगी करें। इस मामले की सुनवाई 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। हाल ही में होने वाली धर्म संसदों में मुसलमानों के कत्लेआम और नस्ल कुशी की बात कही गई थी, जिस पर कई गोशों की तरफ से मजम्मत का इजहार किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इन धर्म संसदों का नोट लिया है। एक धर्म संसद हरिद्वार में हुई थी, जिसकी मेज़बानी यति नरसिंह आनंद ने की थी। एक धर्म संसद दिल्ली में हुई थी, जिसकी मेज़बानी हिंदू युवा वाहिनी ने की थी, जिसमें मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात की गई थी। उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी की गई है और 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान सिक्योरिटी कोताही के मामले की जांच के लिए एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की क़यादत वाली बेंच ने यह कमेटी मुकर्रर की है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल NIA, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़, रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और एडिशनल DGP सिक्योरिटी पंजाब शामिल हैं। इंडिया और चाइना के फौजी ओहदेदारों के दरमियान LAC पर तनाव में कमी के लिए 14वें राउंड की बातचीत हुई। 3 महीनों के वक्फे के बाद इस तरह की बातचीत हुई। ये बातचीत चाइना के इलाके मोल्डो में हुई। इस दौरान इंडियन कैंप ने कहा कि वो चाइना के साथ तनाव में कमी के लिए बातचीत जारी रखना चाहता है। उत्तर प्रदेश में जहां असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, बीजेपी को मुसलसल दूसरे दिन दूसरा बड़ा धक्का लगा है। आदित्यनाथ कैबिनेट के एक और वजीर दारा सिंह चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। दोनों OBC लीडर हैं। इसके अलावा 4 MLAs ने भी बीजेपी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल होने का इशारा दिया। चौहान ने अपने इस्तीफे के लेटर में लिखा कि मैंने बड़ी मेहनत से काम किया, लेकिन आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि इस हुकूमत का
का दलितों, पिछड़े तबकात, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के ताल्लुक से रवैया जालिमाना है। उन्होंने दलितों और पिछड़े तबकात के लिए कोटे को नज़रअंदाज किया है। उनके खत का लबो लहजा वैसा ही था जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य का था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट में चौहान से ख्वाहिश की कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करेंगे। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अब हेट स्पीच के एक पुराने केस में गिरफ्तारी का सामना है। इस्तीफे के दूसरे ही दिन सुल्तानपुर में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उनसे कहा गया था कि वो 24 जनवरी को अदालत में पेश हों। जिस वक्त उन्होंने ये तकरीर की थी वो बहुजन समाज पार्टी में थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हादी की फौज ने शबवा सूबे पर कब्जा कर लिया। सऊदी इत्तेहाद ने तमाम महाजों पर यमन को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन का किया ऐलान। सऊदी अरब में रिकॉर्ड 5400 नए कोविड केस। फाउची ने कहा ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, हर एक को छू कर रहेगा। डोनिंग स्ट्रीट पार्टी के लिए बरतानिया में तहकीकात। लेबर पार्टी लीडर वजीर आजम बोरिस जॉनसन से पूछताछ करेंगे। बरतानिया में 1,20,000, जर्मनी में 80,000 नए कोविड केस। ऑस्ट्रिया में भी नया रिकॉर्ड। स्वीडन में पाबंदियां। इंडिया के कोरोना केसेस 2 लाख हो गए। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन तैयार रखें। मुल्क में हर 11वां शख्स कोविड पॉजिटिव हो रहा है। मोदी जुमेरात को चीफ मिनिस्टर्स के साथ सूरत हाल का जायजा लेंगे। इंडिया चाइना फौजी ओहदेदारों के दरमियान तनाव कम करने के लिए मीटिंग। ओहदेदारों ने कहा बातचीत जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद के सिलसिले में दी नोटिसें। 10 दिन के अंदर मांगे जवाब। यूपी में बीजेपी की एक और विकेट गिरी। मौर्य के बाद वजीर दारा सिंह चौहान ने भी दिया इस्तीफा। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफराज सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।